بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اندر یہ بات لکھ دی تھی اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ کا علم ہونا اور آپ کے اختیار سے اللہ کے علم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم آپ قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ اب جیسے مجھے معلوم ہے، اب میں کہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے کہ کیسے مولانا، میں نے کہا جو بھی یہاں سے جا رہا پل پار کر کے جائے گا، جو بھی یہاں سے بدلی جائے گا وہ بائک سے کر جائے گا تو پل کہیں نہ کہیں اسے پل پار کرنا پڑے گا۔ اب آپ کے مولوی صاحب کتنے بڑے عالم غیب ہیں، تو اس میں علم غیب کا تقاضا نہیں ہے، وہ جانے والا انسان مجبور ہے اسے پل پار ہی کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، اسی سے ہو کر کے گزرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا تھا، اور ایک جملہ اور میں کہہ دوں یہاں پہ بات روک کر کے مولانا ختم ہو گیا ہے، اور قسم خدا کے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو میں شروع میں پڑھنا تھا لیکن یہ بات ضروری تھی کہنا، اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا الحمدللہ، آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتا دے، کیا ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسا ہو جسے مجھے لگتا نہیں میرے عقیدے کے اعتبار سے کہ ہم نے اتنا پیسہ محرم میں خرچ کیا ہے، اپنی حیثیت ہر آدمی اپنے حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کسی کے ذہن میں ذرہ برابر افسوس ہو کہ ارے اتنا پیسہ کیسے خرچہ کر دیا، یعنی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آج 12 محرم کو ہم بیٹھے، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ بھائی 100 روپیہ ہمارا عید میں گرا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے کہ 100 روپیہ گر گیا تھا، لیکن لاکھوں روپے ہم نے 10 دنوں کا خرچ کر دیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور ذرہ برابر اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، اور الحمدللہ آپ اس کو یہ مان کر کے چلیں کہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا انشاءاللہ شہزادی اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا مانتا نہیں تھے، تو میں ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم مولا کے بنا ان کو یاد ہی نہیں کرتے، تو اس نے کہا جو بھی اس نے کہا صادق اہل محمد کا، اور میں کہتا ہوں، اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے۔ کہنے لگا فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بنایا یا مختار بنایا ہے، اور آپ کے پاس علم ہے؟ امام نے کہا بالکل میرے پاس علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، جو تم چاہو جو تم کرنے والے اس کا علم میرے پاس ہے۔ تو اس نے نکالا اپنے جیب کے اندر سے 2 سیب نکالے، اور نکالنے کے بعد امام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، اور کل ہی ایک صاحب کا سوال بھی آیا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جتنی بھی حدیثیں ہیں اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، چاہے وہ اصول کافی ہی میں کیوں نہ ہو، اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک عبارت کسی نے بھیجا، کل ہی میرے پاس آیا ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کئی واسطوں سے ہو کر کے آیا سوال وہ میرے تک، تو اب مجھے نہیں پتا وہ اعتراض کرنے والا شیعہ تھا یا غیر شیعہ تھا۔ تو اس نے کہا نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کے صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں میرے پاس علم غیب نہیں، اور وہ اسی بات کو مان کر کے بیٹھا ہے کہ اب نہج البلاغہ میں آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ارے کم سے کم غیر اعتراض کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن سے دور ہے، تم تو قرآن سے دور رہے، اتنی مجلس پڑھی گئی، من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہو، جو امام مبین ہو، جو حدیث امام علی علیہ السلام کی فرمایا کہ جتنا جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم میرے پاس ہے۔ نہیں آپ نہیں پہنچے بھائی، جس کی تلوار کے اندر اتنا علم ہے کہ وہ 70 نسلوں کا جائزہ لے کر بھائی ایسا ہی نہیں جائزہ لے لیا بھائی، اگر 70 نسل کے بارے میں 70 نسل کب آئے گی مجھے نہیں پتا، 70 نسل کے بارے میں پتا ہے کہ کون اس کی نسل میں مومن ہونے والا ہے، کون منافق ہونے والا ہے، تو علی کے اندازہ کو لے لگا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس علم ہے؟ امام نے کہا یقیناً علم ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ دونوں سیب میں سے میں کون سا سیب کھاؤں گا، ہرا والا کھاؤں گا یا لال والا کھاؤں گا؟
इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे खाली तुम ही चालाक नहीं हो, जहाँ से तुम्हें इतनी अक्ल मिली है उसने हमें अक्ल कामिल बना कर छन्ना लेकर के अक्ल लेने गए थे। सलवात चल गया। आप ना समझ पाए तो मैं क्या करूँ, शूली में रह करके कहा जाता है कि जब अक्ल बट रही थी तो क्या चलनी लेके गए थे, चल गया सब। कहते तुम अक्ल लेने गए थे, जो लेकर गए ऐसा कपड़ा लेकर गए जिसमें सारा गिर गया, तो जिसने तुमको इतनी शक्ल दी है उसने हमें अक्ल कुल बना कर गए, बट तुम ही खाली चालाक हो। अगर मैं कह दूँ लाल वाला खाऊंगा तुम्हारा, अगर मैं कह दूँ तुम लाल वाला खाओगे तो हरा वाला खा लोगे, अगर मैं कह दूँ हरा वाला खाओगे तो तुम बड़े चालाक हो लाल वाला खा लोगे। ऐसा करो मैं तुम्हारा भी बाप, ये मेरे मैं तुम्हारा भी बाप हूँ अक्ल के मामले में। और है अहले बैत रसूलुल्लाह की हदीस है, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। बेटा चाहे जितना आगे बढ़ जाए बाप से वो हमेशा नीचे ही रहता है। इमाम ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, लौह कलम और कागज मैं लिख के दे देता हूँ कि तू कौन सा सेब खाने वाला है। और इमाम अलैहिस्सलाम ने एक पर्ची में लिखा और लिखने के बाद उसी के हवाले कर दिया, कहा ये लोग पहले रख लो और उसके बाद जेब में रख लो, अब उसके बाद फैसला करो कि तुम लाल वाला पर्ची उसके हवाले कर दी, वो जेब में रखे हुए। अभी तक वो इमाम को परेशान करना चाह रहा था। अब वो आपने सुना होगा बचपन में एक कहानी हमारी दादी नानी भी सुनाया करती थी कि एक जिन्नात जो कुएं पे पहुंचा और एक रोटी खाओ कि दो रोटी खाओ कि 7 रोटी खाओ, अगर जिन्होंने सुनी होगी तो अब वो भी परेशान है, बड़ी देर तक गौर व फिक्र करता रहा कि पता नहीं पर्ची में क्या लिखा है, हरा वाला लिखा है कि लाल वाला लिखा है। कभी लाल वाला सोचता है, कभी हरा वाला सोचता है। और इतने में उसने इमाम ने कहा यार जो भी खाना है खा, खत्म कर दो, मेरे पास नहीं है कि तुम आधा घंटा पूरा दिन इसी में लगा दो सोचने में। उसने अख्तियार किया और एक सेब खाना शुरू कर दिया। एक ही लुकमा खाया तो इमाम ने कहा बस पूरा जाके अपने घर खाना, पहले पर्ची देख उसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसने पर्ची निकाला, उसने क्या देखा कि जो वो सेब खा रहा है इमाम ने वही लिखा है। इमाम ने कहा 2 बातें मैं तुझे बताना चाहता हूँ, एक ये कि अल्लाह और हम अहले बैत के पास इल्म गैब है, हम सब कुछ जानते हैं जो कुछ होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हमारा इल्म तुम्हें मजबूर नहीं करता, तुमने सेब को अपनी मर्जी से खाया है। कि आप बात पहुंची नहीं कि मुझे नहीं पता, तुमने सेब अपनी मर्जी से खाया है। मैंने रात में बात कही थी, ये जो यजीद तलवार, ये यजीद हुक्म कत्ल हुसैन का हुक्म दे रहा है, यह शिमर मौजूद है करबला में, यह हुर्मुला तीर चला रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से मजबूर नहीं है, ये तीर अपनी मर्जी से चला रहा है। बेशक, बेशक। ये इल्म इलाही में होना और है और इंसान का मजबूर और मुख्तार होना और है। तो जो इल्म इलाही में, इल्म मासूम में है, वो किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी को मजबूर नहीं किया, कोई मजबूर नहीं। जो भी हम काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, पूरा अख्तियार है। और अल्लाह ने हमको बनाया भी इसीलिए है कि ज़बरदस्ती अगर हमें नमाज़ पढ़वाना होता तो करोड़ों मलाइका तो हमने पहले ही से पैदा किया हुआ, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई, तो तुम्हारी इबादत की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर है। अब देखिए एक बात मुझे वहाँ बैठा तो मुझे मजलिस में भी याद थी कि पहले एक दौर ऐसा भी था कि जब 12 मुहर्रम आती थी तो हम और आप कुछ न कुछ हदिया लेकर के आते थे। एक हदिया ये सामने रखा हुआ है, एक हदिया सूरह फातिहा का। अगरचे इमाम अलैहिस्सलाम को सूरह फातिहा कुरान मजीद की तिलावत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अपने इसी बचपन इसी दौर में ज़माना गुजरा है कि 22 रमज़ानुल मुबारक को भी जब मौला अली का फातिहा होता था तब भी लोग कुरान बख्शवाते थे, और 12 मुहर्रम को भी कुरान हदिया करते थे, सूरा हदिया करते थे, आयत कुर्सी हदिया करते थे, दुआ कुमैल सलवात ये सब हदिया करते थे इमाम अलैहिस्सलाम की। कसम खुदा कि इमाम को इन सवाबों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये सोच करके हदिया दिया करो। जैसे आप शादी में जाकर के कार्ड लिखवा करके आते हैं कि आज 100 रुपया देंगे, लिखा रहेगा, कुछ दिन बाद हमारे घर शादी होगी कि वो रिटर्न आएगा, या हम हदिया देते हैं तो वैसे ही अगर बारगाह मासूमीन में हदिया दिया जाएगा। अगर आप अपनी टूटी फूटी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भेजेंगे तो वहाँ से बेहतरीन वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर टूटी फूटी
इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता यकीनन हमारे मफारिज गलत होंगे, अल्फाज गलत होंगे, जैसा हमारे पढ़ने में और अहले बैत के पढ़ने में बड़ा फ़र्क नहीं समझे आप, हमारी ज़बान में और लिसानुल्लाह की ज़बान में बड़ा फ़र्क है बेशक। तो ये रस्म ख़त्म ना करिए कि आप जो कुछ हदिया करते थे मासूमीन की बारगाह में उसे हदिया करते रहिए, उससे क्या होता है मोहब्बत का इजहार होता है अज़ीज़ान मोहतरम। तो हमारा इख्तियार अल्लाह ताला ने इल्म हमें दिया है, उनके पास इल्म है कि ये बंदा ये करने वाला है, उससे मुक़द्दर नहीं, ये लिखा नहीं गया है कि ऐसा लिख दिया गया कि अब हम मजबूर हो गए, अब हम गरीब हैं तो हम गरीब ही मरेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें गरीब हमारी किस्मत में ज़रूरत लिख दी है। नहीं, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपने तरीक़े से। और नहीं है मेरे पास मौका भी नहीं, अज़ान का भी वक्त आ गया, मैं साहब पे पढ़ दूँ, एक जुमला कह दूँ कि आपने वो वाक़या नहीं सुना है, सदक़े के ज़रिए से मौत को टाल दिया जाता है। तो इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है, अपनी मेहनत से अपने हालात बदल सकता है। और आज 12 मुहर्रम आ गई, अगर कोई बचाना चाहता है शुरू सोच रहा हूँ कितनी आवाज़ हल्की क्यों जा रही है, एक सलवार और पढ़ दीजिए। देखिए ये भी अख्तियार इलाही है, चाहे जितना हाफिज़ा तुम्हारा कभी हो जाए, जब खुदा चाहेगा तो तुम सामने की चीज़ भी तुम्हें दिखाई नजर नहीं आएगी। सलवार पढ़िए मोहम्मद 25 मिनट की कोई मजलिस तमाम हो गई और माइक चालू नहीं हुआ और अब जाकर के चालू है, सलवार तौर पर दीजिए तो अख्तियार इलाही के आगे इंसान इसने अख्तियार दिया है, लेकिन ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन उसको याद करता रहना चाहिए, इंसान को उसके सामने सर झुकाते रहना चाहिए। और करबला में हमने दोनों अख्तियार देखा, हुसैन चाहते तो चले जाते बैत कर लेते, चाहते तो अख्तियार था हुसैन इब्न अली के पास, चाहते तो अपनी इलाही कुव्वत के ज़रिए से एक ठोकर मारते चश्मा निकल आता, लेकिन नहीं, आपने इंसानों की हैसियत से और मलाइका आए, जिन्नात आए कि मौला अगर कहिए तो आपकी तरफ से हम लड़ रहे हैं। इमाम ने फरमाया नहीं, तुम्हारे और इंसानों के दरमियान जंग है, इसमें जिन्नातों का कोई काम नहीं है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कई कुएँ खोदे हैं खैमों के अंदर, लेकिन पानी मुयस्सर न हुआ। और आज 12 मुहर्रम गई, दो जुमले आप मसाइल को सुन लीजिए कि 3 दिन हो गए हुसैन का लाशा जलती हुई ज़मीन के ऊपर में कफन पड़ा हुआ है। हाय कितना अजीम मसाइल है ये, वो जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत से लिबास भेजे थे, आज वो ज़मीन करबला तो उसका लाशा दुनिया पड़ा हुआ है। और रिवायत कहती है पोशीदा लिबास को भी बदन में रहने नहीं दिया। एक मरतबा ज़मीन के खाक में हुसैन का पर्दा किया, अबू तुराब के बेटे का पर्दा तुराब ने किया है। और कैसे ना करती पर्दा कि हुसैन का लाशा जलती हुई ज़मीन के ऊपर जलती हुई नदी के ऊपर पड़ा हुआ था। रिवायत कहती है कबीले बनी असद के लोग आए और चाहते थे कि लाशे को दफन कर दें और कब्रें तैयार की। एक मरतबा रिवायत कहती है कि ये गर्दो गुबार बुलंद हुई, लोगों ने सोचा हो सकता है फौज यजीद का कोई आदमी है। कबीले बनी असद के लोग दूर चले गए, देखा कि जवान है जो चला आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शर्त यह है कि इमाम मासूम को कोई गैर मासूम दफन नहीं कर सकता। इमाम बाइजाज़ इमामत आए, आज 12 मुहर्रम में 3 दिन हो गए हैं, सैयदा के लाल का लाशा जलती हुई ज़मीन के ऊपर बेगोरो कफन पड़ा था। रिवायत कहती है इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबके जनाजे को दफन कर दिया। बनी असद का एक शख्स कहता है कि हम चौथे इमाम के साथ लाशों को दफन करवा रहे थे, एक मरतबा क़यामत हो गई, नहर फुरात पे हम पहुँचे। मेरे चचा ने कहा एक कब्र बनाई जाए। हमने गाज़ी अब्बास की लाश का ये आलम देखा कि जैसे 6 महीने की या 6 साल के बच्चे का जनाजा होता है, इतने टुकड़े कर दिए गए थे लाश को। आपको मालूम है कि लाश हुसैन को मुसला कर दिया गया था। मुसला उसे कहा जाता है किसी लाश के ऊपर मुसलसल घोड़े दौड़ाए जाएं, और ये अरब में सबसे बेकार चीज मानी जाती है। देखिए जंग तो हमेशा से रही, जंग होती थी, लेकिन ये तौहीन करना होता था कि जंग करने के बाद
قتل کرنے کے بعد کسی کے لاشیں کو مسلح کر دیا جائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا جائے، پامال کر دیا جائے۔ روایت کہتی ہے قبیلہ بنی اسد کا شخص ناقل ہے کہ امام علیہ السلام نہر فرات پہ پہنچے اور ایک قبر تیار کی اور